آج دو ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، پہلا جو ہے ہو چکا ہے، بے شک اس میں سے کئی ایسی باتیں ہیں آپ لوگوں نے سیکھی ہیں، آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ بائبل مقدس میں یہ تعلیمات اگر آپ کہیں کہ ختم ہو جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو نہ ختم ہونے والی کتاب ہے، اور بے شک اس کے معجزات بھی، اس کی قدرت بھی اور اس کی تعلیمات بھی یہ عالمگیر ہیں اور ابدی ہیں، ہمیشہ ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم ہے اور اسے کوئی بھی گرا نہیں سکتا۔ آج دوسرا جو ٹاپک ہے کہ کیا یسوع مسیح کا کفارہ عالمگیر ہے یا صرف ایک قوم کے لیے ہے یا صرف مسیحیوں کے لیے ہی ہے؟ کیونکہ پہلے آپ نے سیکھا ہے کہ مسیحی کون ہے؟ مسیحی کون تھے؟ جو یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ کیا کیے گئے یسوع مسیح کے خون سے؟ تو کون خریدے گئے ہیں؟ آپ نے حوالہ پڑھا ہے، کون خریدے گئے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں ہے، کون خریدے گئے ہیں؟ ابھی آپ نے حوالہ پڑھا، بھائی نے حوالہ دیا کہ آپ اس کے خون سے خریدے گئے ہیں اور پھر آپ اس نجات میں شامل ہوئے، مگر آپ شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کن کے لیے آیا؟ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے۔ لیکن پھر اس نے اس گلہ کو جو پراگندہ ہوا ہے اس کو بھی اکٹھا کیا، اور پھر لکھا ہے کہ کچھ ان کو بھی جو اس گلہ کے نہیں تھے ان کو شامل کیا اور اپنے خون سے خرید کے اس میں شامل کرا۔ وہ کون ہے جو خون سے خریدے ہوئے؟ ہم سب ہیں۔ ہم کون تھے؟ کوئی امت نہ تھی۔ ہاں جی، کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی، کھوئی ہوئی بھیڑیں تو جو اسرائیل تھی۔ ہم دوسری بیڑے ہیں، دوسرے کے علاقے ہاں، ہم دوسری بیڑے ہیں، باہر کی بیڑے ہیں۔ باہر کی بھیڑیں کون ہے وہ؟ ہم لوگ تجھی نہیں، تجھی تو بول چکے ہو۔ ہاں جی، کون ہے وہ؟ ہم مسیحی لوگ۔ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں کیا اسرائیلی ہیں؟ پاکستانی جو ہیں، جو ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں، کیا ایشیا کے اس خطے کے رہنے والے لوگ کیا سارے یہودی تھے، اسرائیلی تھے؟ کون تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب خریدے گئے تھے کن میں سے خریدے گئے ہیں؟ غیر اقوام میں سے خریدے گئے ہیں۔ ہم اسرائیلی نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم تو خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ کس کے خون سے؟ یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور اس کا خون آج بھی ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا ہے اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا، ہاللیلویا، خدا کے فرزند ہونے کا۔ امت کون تھی؟ اسرائیل تھی۔ بیٹے کون تھے؟ اسرائیل تھا۔ قوم کون تھی؟ اسرائیل تھا۔ لیکن اس نے جتنوں نے اسے قبول کیا ہے اس نے اس کو بھی اس کی نسل میں شامل ہونے کا حق بخشا ہے۔ ابھی آپ نے غلطیوں کا بھی حوالہ پڑھا تھا کہ اس کی نسل میں شامل ہونے کے لیے ایمان لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کفارے کی بات ہے، ابھی کس کی بات ہے؟ اس خون کی بات ہے، جو خون بہایا گیا، جو دیا گیا، جس کے وسیلہ سے ہم خریدے گئے ہیں، اس خون کی بات ہے۔ کفارہ جب دیا گیا ہے تو یہ کفارہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کفارہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کفارے کا مطلب اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو عالمگیر یہ مطلب ہے۔ کفارے کا مطلب آج بھی سب قومیں اپنے اپنے اندر جو ہے رکھتی ہیں، ہر قوم اپنا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کفارے کا مطلب ہے، جو عبرانی کا لفظ ہے اس کا مطلب میں بتا رہا ہوں۔ کفارے کا مطلب ہے ڈھانپنا، کسی چیز کو کسی چیز کے اندر چھپا دینا۔ جیسے یہ میرے پاس رومال ہے اور اس رومال کے اندر میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا میں نے؟ مائک کو چھپا دیا ہے، اور اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہے ہیں؟ اونچی بولے، کیا نظر آ رہے ہیں؟ اونچی بولے۔
आवाज किससे आ रही है? आवाज किससे आ रही है? जिसने नहीं देखा था वो अगर बाहर से आएगा तो मैं उसे अगर कहूं कि मेरे हाथ में माइक है तो वो क्या कहेगा? हाँ, मेरे हाथ में क्या है? रुमाल है। लेकिन जो इसको देख चुका है वो शायद ना समझे, वो तो यही कहेगा कि ये तो माइक ही है, नीचे क्या है? माइक ही है। तो कफारे का मतलब जो है वो ढांकना है, किसी चीज को छुपा देना, किसी चीज के ऊपर कुछ रख देना और उसे किसी के अंदर जो है कायम कर देना। और इसी तरह कुफारा जब अबरानी में हम इससे कहते हैं तो इसमें दो तरह से इसको सीखा जा सकता है। पहली बात यह है कि ये गुनाह को ढांक सकता है, ये किसी के लिए कोई अगर बरकत उसे देनी है तो उसको रजामंद करने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसको रजामंद करने के लिए किसी चीज का नजराना लेकर जाना, तोहफा लेकर जाना और उसको पेश करना ताकि मुझे वो अपने पास कबूल कर सके। तो खुदा बाप के पास जाने के लिए हम अगर डायरेक्ट जाएं उसके पास तो कभी हम जा नहीं सकते थे। और कोई भी दुनिया का हाकिम है, कोई भी दुनिया का काहिन है, कोई भी दुनिया का आदमी है, वो कभी भी अब खुदा के पास नहीं जा सकता था, इसलिए क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया है और वो खुदा के जलाल से। अगर आप मेरे साथ इसको पढ़ ले, रोमियो का खत है पौलुस रसूल का, उसके 3 बाब की चंद आयत को पढ़ें मेरे साथ, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस आयत पर गौर करेंगे। रोमियो का खत उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत से हम पढ़ेंगे। हाँ जी, निकालिए सबने, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मकदसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदा मंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु मसीह पर ईमान लाए उसको भी रास्त पर से जाने वाला हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए, सब कहेंगे आमीन। और यहाँ पर जैसे लिखे कि सब ने गुनाह किया, और ये गुनाह जो है ये आप सब जानते हैं, पैदाइश की किताब में लिखा है कि कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है गुनाह। और जब तक हम गुनाह को समझ नहीं जाते तब तक कभी हम कफारे को भी समझ नहीं सकते, क्योंकि खुदा के बहुत सारे खुदाम जो है इसको बयान करने की कोशिश करते रहे। और अगर गुनाह की कफारे की जरूरत को हम समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें गुनाह की उस अहमियत को समझना पड़ेगा, गुनाह के गहराई को समझना पड़ेगा, गुनाह के असल पहलू को हमें समझना पड़ेगा कि वो गुनाह क्या उसी कुवारे के वसीला से ही सही हो सकता है या तब्दील हो सकता है, या इंसान गुनाह से आजाद हो सकता है, या कोई और भी तरीकेकार इसमें हायल था कि जिसकी वजह से ये गुनाह सही हो सके, या इंसान तब्दील हो सके, या वो खरीदा जा सके, या उसकी ज़ाते अक़दस को जो खुदा की ज़ाते अक़दसी थी उसको चेंज कर दिया गया, अब दोबारा बहाल कर दिया जाए। तो गुनाह मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जिंदगी में काम करता है, लेकिन ये असल में एक ऐसी हकीकत है जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और बाइबल मुकद्दस की तालीम में गुनाह की जो हैबतनाक तालीम पाई जाती है कि ये गुनाह अगर जिंदगी में है, क्योंकि गुनाह ख्वाहिश की वजह से आता है और गुनाह जब बढ़ता है तो फिर मौत को पैदा करता है, तो इसलिए गुनाह एक हैबतनाक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इंसान कभी भी बहाल नहीं हो सकता था। इसलिए खुदा ने फिर एक इंतजाम किया ताकि इंसान को दोबारा वो बहाल करे। हालेलुया, क्या किया? उसे फिर दोबारा बहाल करे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने उसे यानी 25वीं आयत में लिखा है,
اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے. کیا کیا ہے؟ ایک ایسا. کس نے کفارہ ٹھہرایا ہے؟ خدا نے ٹھہرایا. اب کفارے کی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو قسمیں ہیں. پہلے یہ ہے کہ اگر کسی سے صلح کرنی ہے تو اس کے لیے عبرانی جو لفظ ہے اٹینومنٹ، جس کا مطلب ہے رضامندی کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ اس تعلق میں بحال کرنے کے لیے اس کے لیے نذرانہ دیا جائے یا فدیہ دیا جائے یا اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ادا کیا جائے. اب کفارے دیے جا رہے تھے، بار بار کفارے دیے جا رہے ہیں، ہر سال کفارے دیے جا رہے ہیں. کفارہ کس کے وسیلہ سے دیا جاتا تھا؟ یہ صرف اور صرف بائبل مقدس کی تعلیم بتاتی کہ خون کے وسیلہ سے، کہ بغیر خون بہائے معافی، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. تو خون بہائے جاتے رہے، بکروں کے، بچڑوں کے اور بہت ساری ایسی چیزوں کے خون بہائے جاتے رہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے لیکن وہ بکروں بچڑوں کا خون لے کر کبریا کی دائیں طرف نہیں بیٹھا بلکہ اپنا ہی خون لے کر وہاں پر جا بیٹھا، کیونکہ وہ سال بعد قربانی دیتے اور وہ خون ان کو کبھی نجات نہیں دے سکتا تھا، ہمیشہ کا آرام ان کو عطا نہیں کر سکتا تھا، ہمیشہ کی زندگی ابدی آرام میں ان کو داخل نہیں کر سکتا تھا. عبرانیوں کا خط اگر میرے ساتھ نکالیں آپ، عبرانیوں کے خط میں پالوس رسول اس بات کو بڑے واضح طور پر ہماری زندگی میں بیان کرتے ہیں. میرے ساتھ 10واں باب نکالیں. پالوس رسول کا خط ہے عبرانیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 10واں باب. کیونکہ شریعت جو تھی یہ بے شک موسمی شریعت مل تو گئی، لیکن اس کے بعد کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیا عہد نامہ جب سب پر عیاں کرنا شروع کر دیا تو اس سے پہلے ہی خدا نے اپنے بیٹے کو مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ جہان کے گناہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. اور جب اس کا نام رکھا گیا، یسوع نام رکھا گیا، تو اس کا مطلب ہی کیونکہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں سے ان کو کیا دے گا؟ نجات دے گا. تو اس لیے عبرانیوں کے خط میں اس کے 10ویں باب میرے ساتھ دیکھیں. کیونکہ شریعت پہلی ایسے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. سن رہے میری بات؟ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ ایک ہی بار میں ان کو کامل نہیں کر سکتی، اور ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا. کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال با سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند، بولے میرے ساتھ، قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختنی قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری ہو. تو ہمارے لیے کیا کیا گیا؟ ایک بدن تیار کیا گیا. ایک بدن کیا کیا گیا؟ ہمارے لیے تیار کیا گیا تاکہ کس کی مرضی پوری ہو؟ خدا کی. تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اے خدا دیکھ میں آیا ہوں تاکہ ان کے لیے قربان ہوں، اس لیے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو وہ اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ کی قربانی کے لیے پیش کرتا ہے. اس لیے کہ قربانیاں تو وہ بہت زیادہ دیتے تھے. اسرائیلی آپ سب جانتے ہیں نا، اسرائیلی بہت قربانیاں دیتے تھے، لیکن خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی صرف ایک ہی ہوتی تھی، اور وہ صرف اور صرف بیلوں بکروں کے بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے ہوتی تھی. اور خطا کی قربانی جو ہے، گناہ کی قربانی، وہ کسی اور طریقہ سے نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ قربانیوں میں وہ میدا، وہ تیل، وہ اور بھی مہنگے رس کو اور پہلے پھلوں کے ہدیوں کو، شکر گزاریوں
कुर्बानियों को और भी बहुत तरीकों से कुर्बानियां खुदा के हुजूर में लाते थे, लेकिन जो गुनाह की कुर्बानियां उसका एक ही तरीका था और वो है सिर्फ खून बहाया जाना। और खून बहाया जाना ये खुदा के हुजूर में उसके कहर को ठंडा करता था। अगली आयत में 8वें में लिखा है कि ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सोख्ती कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती थी। और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं, और गर्ज वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं, और वो हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजराता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दैनी तरफ जा बैठा, और उसी वक्त से मुंतजिर है उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से, कितनी कुर्बानियां चढ़ाने से, एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। आज जो पाक किए जाते हैं, और उल-कुदस भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद के खुदावंद फरमाता है, क्योंकि अगर हम आज भी उसी चीजों को दोबारा अपने अंदर रिपीट करते हैं, दोबारा उन कुर्बानियों को अपने लिए गुजराते हैं, तो मसीह की कुर्बानी हमारे लिए कुछ भी फायदामंद नहीं है। तो उसका कफारा जो इवजी बनकर हमारे लिए आया, क्योंकि पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो अटैनमेंट है, जिसका मतलब है कि रजामंदी के लिए किसी के लिए कुछ की पेश करना, तो कुफारा जो बाइबल मुकद्दस अबरानी में कहता है, तो वो हमारे इवजी बनकर वो हमें बचाने के लिए अपने आप को पेश करता है, किसी और चीज का नजराना लेकर नहीं आता। दूसरे तो दूसरों का नजराना लेकर आए, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को नजराने के तौर पर लेकर, हालेलुया हालेलुया। तो वो कुफारा जो उसने दिया था, वो ना सिर्फ यहूदियों के लिए था, ना सिर्फ वो एक कौम के लिए था, बल्कि वो आलमगीर था, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया है, जितनों ने भी, उसमें सब आते हैं कि जितनों ने कबूल किया है, आलमगीर ये कफारा है। आप जानते हैं कि वो गुनाह जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं, गुनाह क्या आदम ने किया था, तो वो गुनाह सिर्फ आदम की हद तक है, क्या वो आलमगीर गुनाह नहीं है? वो गुनाह आलमगीर नहीं है, वो गुनाह सबके अंदर सराहियत नहीं कर गया, वो गुनाह तुखमी तौर पर सबके अंदर नहीं चला गया। तो अगर सिर्फ आदम की हद तक रहता, तो फिर वो आदम ही कोई वो चेंज करने के लिए अपने आप को कुर्बान करता उस वक्त में। लेकिन उस लिखा है कि उसके लिए फिर एक बदन तैयार किया गया, ताकि आलमगीर उस गुनाह की माहियत को, उसके सारे असर को, उसकी सारी नापाकी को, उसकी सारी कुव्वत को ज़ायल करे, और वो यीशु मसीह की उस कुव्वत के वसीला से उस पूरी दुनिया के ऊपर पाकीज़गी को कायम कर सके। इसलिए उसकी आलमगीर कुर्बानी को अगर हम देखते हैं, तो आगे 17 आयत पढ़े, तो 17 आयत में लिखा है कि फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा, और जब उनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। अब गुनाह की कुर्बानी बाकी नहीं रही, इसलिए कि वो एक ही बार कुर्बान होकर खून बहाकर हमें धोकर पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। इसलिए आज भी जो लोग उसकी कुर्बानी को, उसके उस बड़े कुर्बान होने के बदन को कबूल करता है, खुदावंद उसे अपनी पाक रहमत के वसीला से उसे शिफा बख्शता है। और इसी तरह हम अगर खुदा के जिंदा कलाम में इस बात को और वाज़िह देखना चाहते हैं, तो इस कुफारे के लिए दो और लफ्ज जो है वो बयान किए गए हैं, एक्सपेंशन और दूसरा है प्रोपटेंशन। इनका मतलब ये है कि कुर्बानी के लिए अगर कुछ चीज दी गई है तो वो गजब को ठंडा करे। क्या करे? गजब को ठंडा करे। और खुदा का गजब जो है वो इंसान के ऊपर उस वक्त में जब उसने गुनाह किया तो बेशक भड़का, और आदम को खुदा ने क्या कहा कि इस बागे अदन से निकल जा। और खुदा ने अपने गजब को बढ़ाया
लेकिन फिर भी क्योंकि उस वक्त में एक अजीब काम हुआ था, आज भी हम इस बात की तरफ तवज्जो करेंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा वक्त आया कि जब खुदा ने आदम को देखा तो खुदा को उस पर तरस भी आया और खुदा ने फिर उसके लिए इंतजाम किया। लिखा है कि चमड़े के कुर्ते उसके लिए तैयार किए। तो वो चमड़ा कहां से आया होगा? हाँ जी, चमड़ा कहां से आया? चमड़ा कोई जानवर वहां पर ज़बह किया हुआ है? बाइबल मुकद्दस इसके बारे में आइन शायद गवाह है कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो जो चमड़ा वहां पर मिला था, वहां पर उस बर्रा की उस खलड़ी को उतार कर उसकी शर्म को ढांका गया था, क्योंकि गुनाह जो है ये शर्म को और बदी को और शर्मिंदगी को जाहिर करता है। इसलिए उसकी शर्मिंदगी को ढांकने के लिए खुदा ने एक चमड़े का कुर्ता तैयार किया था, क्योंकि पत्ते तो उसे ढांक ना सके। तो वो यीशु मसीह की उस तशबीह को बयान करता है कि यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने आप को कुर्बान किया, बल्कि हमारी शर्मिंदगी को ढांकने के लिए उसने हमारे लिए एक ऐसे कुर्ते तैयार करवाए और वो अपने जिस्म का हिस्सा उसने दिया, खड़ी उसने उतार कर दी। तो वो आज भी हमें उसी तरह हमें शर्मिंदगी से बचाना चाहता है, आज भी ऐसा करना चाहता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ ऐसे औराक को हम पढ़ें और ऐसे सिफात को हम पढ़ें जो हमें इस बात की तरफ लेकर जाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि अपने आप हम अपने आप को पाक नहीं कर सकते। गिनती की किताब मेरे साथ निकाले, अगर गिनती की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 23वीं आयत कि हम अपने आप को कभी अपने आप पाक नहीं कर सकते। इसलिए खून का बहाना बहुत जरूरी है। खून का बहाना हमारी पलीदगी को साफ करने के लिए है और अपने अमाल से भी हम अपने गुनाहों को कभी दूर नहीं कर सकते। जिसने निकाला जरूर है, आप इसको तलावत कर सकते हैं। गिनती की किताब 32वां बाब और उसकी 23 आयत, अगर नहीं तो मैं जरूर आपके लिए पढ़ता हूं। गिनती की किताब 32वां बाब और उसकी 23वीं आयत। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। और इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा है, लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह उनको पकड़ेगा, और जरूर पकड़ेगा। क्योंकि अगर आप तुम इस गुनाह में हो तो जरूर ये गुनाह तुम्हें पकड़ लेगा और ये कभी तुम अपने आप को इस गुनाह से छुड़ा नहीं सकोगे। अगर छुड़ाना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि अपने लिए उस कफारा को कबूल करो। और ज़बूर की किताब और उसके 49वें बाब की 6 और 8वीं आयत इस बात को और ज्यादा वाज़ेह करती है कि हम अगर अपने आप चाहें तो कभी भी हम खुदा के हजूर में पेश नहीं हो सकते। इसलिए हमें जरूरी है कि अपने भाइयों की पलीदगी भी और अपनी पलीदगी को भी साफ करने के लिए जरूर है उस खुदा के इंतजाम के मुताबिक, क्योंकि जो उसने इंतजाम किया है उसके मुताबिक हमें उसमें कायम रहना जरूरी है। 6 और 8वीं आयत तक ये 49वां बाब है ज़बूर की किताब और 49वां बाब 6 से 8वीं आयत तक। और जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं और अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं और उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है और अब तक अदा ना होगा। कि कोई भाई उसका फिदिया नहीं दे सकता सिवाय उसके जिसको उसने मुकर्रर किया हुआ है, क्योंकि वो तो पहले से मुकर्रर कर दिया गया है। वो बदन हमारे लिए तैयार कर दिया गया हुआ है। वो हमारे लिए अपने आप को जरूर पेश करेगा और करने के लिए वो आया और उसने आकर अपने आप को पेश किया और सलीब पर चढ़ गया और उस पर उसने खून बहाया और उसका खून बहा और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी अगर हम ये कहें कि हम उसमें बचना चाहते हैं
تو رومیو کا خط جو ہم نے نکالا 3 باب کی اس کی 20ویں آیت اور زیادہ اس بات کو واضح کرتی ہے. اور رومیو کا ہی خط میرے ساتھ آپ نکالیں اور اس کے 5ویں باب کو بھی ہم پڑھیں گے اور اس کی پہلے 20 آیت جو ہے 3 باب کی 20 آیت اور پھر اس کے بعد 5ویں باب کو بھی پڑھیں گے. لکھا ہے کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے صرف خداوند یسوع مسیح. اب عالمگیر وہ کیسے بن جاتی ہے؟ اگر آپ اس کو 5ویں باب میں پڑھیں تو وہ قربانی عالمگیر کیسے بن جاتی ہے، وہ اس کا کفارہ عالمگیر کیسے بن جاتا ہے. میرے ساتھ 12ویں آیت 5ویں باب کی 12ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. اور بے شک میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رومیو کا خط اگر پورا پڑھ لیں تو میں یہ ایمان رکھتا ہوں مقدس اگسٹین جو تھا نا اس نے رومیو کا خط پڑھا اور جب رومیو کے خط کی تعلیمات لیتا ہوا آگے بڑھتا گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہوا کہ اب میں مکمل مسیحی ہوں. کیونکہ اس کے اندر ایک بدعت تھی جو کفارے کے بارے میں وہ سمجھتا تھا، جو آج بھی کیتھولک کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہے، آج بھی پائی جاتی ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو وہ بڑھانا نہیں چاہتے، اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر آپ ایک کتاب ہے رسولوں کے نقش قدم، اگر کسی کی نظر سے گزری ہو، نہیں تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں. بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر صفحہ نمبر ہے 686. اور ایک بدعت تھی جو مقدس اگسٹین کے دور میں جو سٹارٹ ہوئی 5ویں صدی کے اندر، اگسٹین نے اس کو کہا جاتا ہے فلاغی بدعت. کون سی بدعت؟ فلاغی بدعت. فلاغی نہیں، فلاغی غین ہے، فلاغی فلاغیت جس کو کہا جاتا ہے. فلاغی بدعت وہ ایسی بدعت تھی کہ جو کفارے کو مانتے تو تھے لیکن بائبل کے مطابق نہیں مانتے تھے. جب اس نے رومیو کا خط پڑھنا شروع کیا تو اس نے اپنی اس بدعت کو صحیح کرنے کے لیے پھر اس نے جوابات دیے، لیکن وہ جوابات صحیح نہ دے سکا. اس کا نقصان کیا ہوا کہ نقصان یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد 16ویں 17ویں صدی میں آ کر ایک اور فرقہ جو ہے اس نے جنم لیا اور اس نے مسیح خداوند کی قربانی کو، اس کے کفارے کو ایک طرف کیا. وہ کہتے ہیں مال بھی صحیح ہوں گے، آپ بچپن سے پاک ہیں، پیدا ہوتے بھی پاک ہیں، آپ بعد میں بھی پاک رہ سکتے ہیں، ہمیشہ پاک رہ سکتے ہیں، کسی خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس نے سٹارٹنگ میں ایک بدعت جو ہے پیدا کی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ داؤد نبی یہ فرماتے ہیں کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں، اور لکھا ہے کہ وہ جو گناہ آدم نے کیا تھا وہ ساری انسانیت میں پھیل گیا، اثر کر گیا. آج بھی پھر میں دوبارہ حوالہ آپ کو پڑھاؤں گا، کرنتھیوں کے خط میں ہے کہ وہ کیسے آدم کے وسیلہ سے وہ دنیا میں گناہ جو ہے پھیل گیا. لیکن ابھی ہم اگسٹین کی اس بات کو ضرور سیکھیں کیونکہ اس نے جب یہ سب کچھ کہہ دیا تو ایک اور بدعت نے جنم لیا. اس بدعت کی وجہ سے پھر ایمان کی جو سچائیاں تھی وہ گرنا شروع ہو گئیں اور 16ویں 17ویں صدی میں سوسنیت ایک نیا مذہب جو ہے اس نے جنم لیا اور اس نے نئی ایک تحریک شروع کی تاکہ وہ دوسرے ان مسیحوں کو آسان زندگی پیش کرے. آج بھی بہت ساری مذہبی فرقے ہیں، کئی ایسے جو فرقے ہیں جو اس بات کو زیادہ فوکس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ایسے بھی زندگی بسر کر لیں تو آپ مسیحی ہی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اس کی قربانی کو قبول نہ بھی کریں تو پھر بھی آپ مسیحی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نئے سرے سے پیدا نہ بھی ہوں تو پھر بھی آپ مسیحی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے اس کی قربانی میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے تو کوئی بات نہیں. وہ یہ کہتے ہیں ایزی دیتے ہیں سب کو ایزی لائف کے لیے، وہ آج بھی گزارے ہیں. اور یورپ میں تو یہاں تک رواج ہے کہ کوئی کسی کے اوپر اس کا گناہ ثابت نہیں کرنا چاہتا اور کہتا بھی نہیں، کوئی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ تو گنہگار ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ گنہگار ہے یہ مجھے کمرہ عدالت میں کھڑا کر لے گا، یہ مجھے سزا دلوائے گا، یہ مجھے وہاں عدالت میں کھڑا کر کے تو
मुझे हो सकता है मेरे ओहदे से ही फारिग करवा दे। और इसलिए कई रहनुमा, कई मजहबी रहनुमा डरते हुए वो किसी का गुनाह उसके ऊपर साबित भी नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब तक आप उस कफारे के नीचे नहीं आएंगे, आपका गुनाह जो है आपकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हो सकता। और मसीहियों को भी ये तालीम थी, यहूदियों को भी यही तालीम थी, इसराइलियों को भी यही तालीम थी, यीशु मसीह की तालीमात भी सबसे बड़ी यही। आपको पता है कि निकोदेमुस ने जब सवाल किया तो यीशु मसीह ने उसे कहा था, क्या कहा? यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि उसने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो उस बादशाही को दिखा देख भी नहीं सकता, हासिल करना तो दूर की बात है। अगली आयत में लिखा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो फिर वो उसमें दाखिल भी, पहले लिखा है देख भी नहीं सकता, फिर लिखा है कि वो उसमें दाखिल पानी और दूध से जब तक कोई पैदा ना हो। तो इसलिए हम इंसान को जब देखते हैं तो इंसान का खुदा के साथ राबता जो है वो वैसे नहीं हो सकता जब तक वो गुनाह से अपने आप को पाक नहीं करता, क्योंकि खुदा बदी को देख, खुदा का कलाम की फरमाता है खुदा बदी को देख नहीं सकता। अब खुदा ने ये इंतजाम किया था कि हम खुदा के सामने मकबूल नजर ठहरे। तो उसने कैसे किया? रोमियो का खत है 5वां बाब मैंने आप सबके लिए रखा है, 5वें बाब की 12वीं आयत से आप पढ़ सकते हैं। 5वां बाब 12वीं आयत, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। लेकिन कसूर का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के कसूर से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल, उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई। और इसलिए क्योंकि ये बख्शिश जो उसके वसीला से पैदा हुई है बहुत से आदमियों पर जरूर ही अफराद से नाज़िल होगी। सिर्फ एक आदमी पर नहीं, सिर्फ आदम पर नहीं, बल्कि बहुत से आदमियों, क्योंकि वो गुनाह फैल गया दुनिया में। और जब फैल गया तो आलमगीर गुनाह है, तो उस आलमगीर गुनाह को खत्म करना है किसने? जो आलम के ऊपर, दुनिया के ऊपर, जहान के ऊपर अपना इख्तियार रखता है, और वो इख्तियार उसे उसके बाप ने दिया है। यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में लिखा है, उसने कहा ये इख्तियार मुझे किसी से नहीं मिला, बल्कि ये इख्तियार मुझे मेरे बाप ने दिया है। हालेलुया! कि वो जहान के गुनाहों को मुआफ करे, उसको इख्तियार मिला है कि वो सब के गुनाहों को मुआफ कर सकता है। फिर अगली आयत ये फरमाती हैं, अगर आप 16वीं आयत से पढ़ें, और जैसा एक शख्स के गुनाह का इंजाम हुआ बख्शिश का वैसा ही हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बतेरे कसूरों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के कसूर के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। हालेलुया! वो यीशु मसीह के वसीला से क्या करेंगे? बादशाही करेंगे। हालेलुया! यीशु मसीह के वसीला से करेंगे, किसी और वसीला से नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ही वसीला दिया गया था, एक ही नाम दिया गया था, एक ही कफारा दिया गया है, और एक ही ने कफारा दिया है, एक ही बार कुर्बान हुआ है, और साल बाद हमारे लिए कुर्बानियों का इंतजाम उसने नहीं किया, बल्कि साल में एक बार गुनाह जो हमें मुआफ कर दिए जाते, दोबारा हमें याद दिला दिए जाते थे कि तुम तो गुनहगार हो, क्योंकि आदम ने गुनाह किया तो वो तुम्हारी जिंदगी में पाया जाता है। इसलिए मेरे साथ निकाले, करंथियों का खत है, करंथियों का खत मेरे साथ निकाले, करंथियों का खत और उसका 15वां बाब, पहला करंथियों का खत है, उसका 15 बाब मेरे साथ निकालेंगे, और 15 बाब की 45 में आए, 15 बाब की 45 में आए,
میں آپ کے لیے یہ ضرور پڑھوں گا کیونکہ ابھی مائک جو ہے کسی کے پاس نہیں، تو ضرور میں آپ کے لیے پڑھوں گا 15 باب کی 45ویں آیت 45ویں آیت۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا۔ روحانی پہلے نہ تھا، پہلے کون تھا؟ پہلے کون تھا؟ دوبارہ پڑھیں اوپر بائبل کے اوپر دھیان کریں۔ ہاں بائبل آپ کے پاس ہے، ہاں دوبارہ پڑھیں 46ویں آیت ہے، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خدا کی خاکی تھا، اور دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسا ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ ہاللیلویا، اس کی صورت پر ہوں گے، اس لیے کیونکہ وہ یسوع مسیح آدم بن کر جب آیا ہے، تو آدم جب بن کر آیا تو پہلے کون تھا؟ جسمانی تھا؟ نفسانی تھا؟ نہیں، پھر پڑھیں، ہاں نفسانی پہلے تھا؟ نہیں تھا، بلکہ پہلے کون تھا؟ روحانی تھا۔ وہ روحانی کون ہے؟ نفسانی کون ہے؟ روحانی کون ہے؟ پہلا کون ہے اور پچھلا کون ہے؟ اس کے اوپر غور کرنا ہے نا، کہ یہ یہاں پر دو آدم کی بات کر رہے ہیں، ایک آدم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول کن کی بات کر رہے ہیں؟ دو کی، ایک پہلا اور دوسرا کون سا ہے؟ پچھلا ہے۔ پہلا آدمی یعنی زندہ نفس بنا، اور پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح ہے۔ تو زندگی بخشنے والی روح کون ہے؟ کون زندگی دیتا ہے؟ کون زندگی بانٹ رہا ہے؟ کس میں سے زندگی صادر ہوتی ہے؟ کون یہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں؟ کون کہتا ہے زندگی کا پانی کا چشمہ میں ہوں؟ کون کہتا ہے حیات کا چشمہ میں ہوں؟ زندگی کا چشمہ میں ہوں؟ کون کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں؟ کون یہ دعوے کرتا ہے؟ کون دعوے یہ کر سکتا ہے؟ یہ صرف کون ہے؟ یسوع مسیح ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ زندگی میں ہوں، اور لکھا ہے کہ پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح ہے، اور وہ زندگی بخشنے والی روح ہی مجسم ہوئی کلام خدا ملک ہے، وہ کلام پہلا باب جو ہے یوحنا کی انجیل، اور لکھا ہے کہ جب وہ آیا تو اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے قبول کیا، اپنے کون تھے اس کے؟ اپنے کون تھے؟ یہودی، جو خدا کے بیٹے کہلاتے، وہ جو اسرائیل ہیں، وہ جو اس کی قوم ہے، امت ہے، ان نے اس کو قبول نہ کیا۔ نور تاریکی میں چمکا، لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، اور اپنوں نے قبول نہ کیا۔ اپنوں نے نہیں قبول کیا، پھر کنہوں نے قبول کیا؟ جتنوں نے، غیروں نے قبول کیا، دوسروں نے قبول کیا، اپنوں نے قبول اسے نہیں کیا، لیکن دوسروں نے اسے قبول کیا، اور لکھا ہے کہ جتنوں نے قبول کیا اس نے ان کو جو ہے وہ اس بادشاہ کا فرزند بنا دیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا خون آج بھی ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کا ہمارے لیے کرم یہ ہے کہ وہ نفسانی آدمی جو گناہ میں پڑا ہوا تھا، یعنی وہ آدم جس کی وجہ سے ہم موت میں جا سکتے تھے، ہم ابدی اس قید میں بہشت کے باہر ہی ہم قید کر دیے جاتے تھے، تو اس نے ہمارے لیے انتظام کیا، اپنا بدن پیش کیا، جیسے عبرانیوں کے خط میں آپ نے پڑھا ہے، اپنا بدن پیش کیا، کسی اور کا بدن پیش، وہ ہمارا حفظی بن گیا، اپنی آپ کو پیش کر دیا۔ تو آج میرے عزیزو، خدا کا کلام اس بات کی طرف ہماری توجہ جو ہے مبذول کرواتا ہے کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے جو پہلا آدم ہے وہ زندہ نفس تو بنا، لیکن وہ زندگی بخشنے والی روح نہ بنا، اس لیے جو زندگی بخشنے والی روح ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ یسوع مسیح آج بھی ہمیں اس گناہ سے نکال کر زندگی میں داخل کر سکتا ہے، اور آج بھی ہمیں ہمیشہ کا آرام
दे सकता है। खुदावंद का कलाम इस बात की तरफ आज भी हमारी तवज्जो रखना चाहता है, क्योंकि कफारे की जो हालत है, कफारे का जो असर है, वो अपने आप ना होता है और ना खुदा ने ये किया है। क्योंकि कफारे का असर तब ही होता है जब कोई उस पर ईमान रखता है, जब कोई उसको कबूल करता है, जब कोई उसकी अज़ली कुदरत का इकरार करता है। उसी रोमियो के खत में दोबारा मेरे साथ आए, रोमियो के खत में दोबारा आए, रोमियो का खत और उसके हम 6 बाब की चंद आयत पढ़ेंगे। पहली आयत से, 6 बाब की पहली आयत से। हाँ जी, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पवित्र हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पवित्र होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। क्या हो? वो आदम का बदन जो है, जो नफसानी बदन है, क्या हो जाए? बेकार हो जाए, और ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से, हालेलुया, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। और लिखा है कि बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह में जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। हालेलुया। तो ये कफारा अब तक ये जीने की एक बड़ी उम्मीद है, और हर एक के लिए, ना सिर्फ यहूदी के लिए, ना सिर्फ यूनानी के लिए, ना सिर्फ पारसी के लिए, ना सिर्फ फारसी के लिए, ना सिर्फ आम लोगों के लिए, बल्कि हर एक इंसान के लिए, हर बशर के लिए है। क्योंकि जो मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, नई इंसानियत पहन लेते हैं, उनकी हैसियत, उनकी नस्ल, उनका रुतबा, उनका किरदार, उनका फेल, उनका गुनाह, उनकी जिंदगी वो तब्दील करके रख देता है। क्योंकि अब लिखा है कि यहूदी यहूदी ना रहा, बल्कि क्या हो गया है? खून से खरीद लिया गया है। बल्कि क्या हो गया है? खून से खरीद लिया गया है। और अब चेंज हो गया ना, यहूदी यहूदी ना रहा। अगर यहूदी रसूमात करते रहेंगे तो फिर हम क्या बनेंगे? यहूदी रसूमात करेंगे तो फिर क्या बनेंगे? सिर्फ यहूदी बनेंगे। अगर यहूदी रसूमात को वो तब्दील करके हमें किसी और तरीका से जिंदगी बसर करने की तौफीक देता है, तो लिखा है कि जो मसीह में मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। अब वो ना रहा, बल्कि मसीह उसमें जिंदा है। तो अब अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ इस बात को, तो जरूर इस पर और फोकस आपका हो जाएगा। अगर आप तीसरा बाब है कुलसियों के नाम खत पौलुस रसूल का, उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। 9वीं आयत से, हाँ जी, 9वीं आयत, 3 बाब कुलसियों का खत और उसका 3 बाब 9वीं आयत। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या किया है? पुरानी इंसानियत को उतार डाला है और नई इंसानियत को पहन लिया है, और जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बदली जाती है। अब क्या किया? आपने उसको पहन लिया हुआ है।
तो अगर किसी चीज को आपने अपने ऊपर पहन लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को क्या किया है, ढांप लिया है। क्या किया है? अगर पहन लिया तो क्या किया, अपने आप को ढांप। तो कुफारे का मतलब मैंने आपको क्या बताया, किसी चीज को ढांप लेना। तो खुदावंद यीशु मसीह को अगर आपने पहन लिया है तो फिर आपने क्या किया है, अपने आप को उस कुफारे के अंदर ढांप लिया है। तो अब खुदा किसके ऊपर निगाह करेगा? हाँ जी, अब खुदा किसके ऊपर निगाह करेगा? हाँ जी, फिर दोबारा दसना पैरा है। आपकी नजर किसके ऊपर पड़ रही है? किसके ऊपर पड़ रही है? तो यहाँ क्या लिखा है, जिसने पुरानी इंसानियत के उस कामों को समेत उतार डाला है और नई इंसानियत को पहने। वो नई इंसानियत क्या है? यीशु मसीह। वो हमारी नई इंसानियत है, वो रास्तबाजी है हमारी, और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, और उसने हमारे लिए पेश किया अपने आप को, और अपने खून से धोकर हमें पाक किया है, और हमारे ऊपर जो है अब यीशु मसीह का लिबास है। और अब खुदा किस पर निगाह करता है? हमारे ऊपर निगाह करता है, हमारे बदन पर करता है। क्योंकि अब भी पौलुस रसूल कहता है कि मैं इस बदन के अंदर ग्राखता हूँ, इसलिए कि जो बदी का और जो नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे हो नहीं पाती, और जो बदी का इरादा मैं नहीं करता हूँ मुझसे हो जाती है। क्योंकि ये बदन जो है, जब तक ये जमीन पर है, बदन के अंदर ब्लड है, ख्वाहिश इसके अंदर है, ख्वाहिश हमला होती है और गुनाह को जन्मती है। गुनाह जब हमारे अंदर है तो खुदा कभी हमारे ऊपर निगाह नहीं कर सकता। कब निगाह करता है? जब इसके ऊपर यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं, और जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने उसको अपने ऊपर पहन लिया है। तो अब निगाह किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? यीशु मसीह के ऊपर है। आगे लिखा है, आप पढ़े मेरे साथ, जो मार्फत हासिल करने के लिए, 10वीं आयत है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। ये नहीं कि बन गई है, क्योंकि वो जो बिदअत थी ना बलागी, जो मैं आपको बता रहा था, जो वसीम की है, वो कहते हैं अब पाक हो गया, कोई गल नहीं, खैर भजे फिरो, और शराबा पियो, सिगरेटा पियो, और सारा कुछ करो, और गालां कड्डो, लोकां दे जड़ना पुट्ठे सीधे काम करो, और बेवां दा हक खाओ, हर सारे काम करो। मैं हुण मसीही हो गया वहां, मैं मुसीबत तौबा कर ली, मैं मसीही हो गया। तो ये उनकी बिदअत जो आज भी मसीहों में पाई जाती है। 5वीं सदी की बिदअत आज भी पाई जाती है, इसलिए कि वो कहते हैं कि कोई भी ना बपतिस्मा ले फिर भी वो पाकिशा ले सकता है, ना भी बपतिस्मा ले, नए सिरे से ना भी पैदा हो, वो फिर भी मसीह का है, मसीह उसका है, मसीह उसको बचा लेगा, अबदी जिंदगी दे देगा। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है कि जब तक उसने उसको नहीं पहना, वो उसकी नई सूरत पर कभी तामीर नहीं हो सकता, कभी नहीं बन सकेगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को उसकी सूरत में लाना चाहते हैं दोबारा, क्योंकि आदम की सूरत क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? कुछ और बात है। हाँ जी, कौन सी थी? उसकी सूरत क्या हो गई थी? गुनाह की वजह से बिगड़ गई थी। क्या हो गई थी? तो उस सूरत को क्या करना है? बहाल भी तो करना है ना। तो सूरत को बहाल करने का क्या तरीका होगा? मसीह को पहनना पड़ेगा, नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा, फिर वो नई सूरत में बनता जाएगा। आगे क्या लिखा है कि अपने खालक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहां ना यूनानी ना रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वहशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। मसीह यीशु सब कुछ है और सब में है, वही सब कुछ है। इसलिए उसके पास आएंगे तो आपकी सूरत को वो तब्दील कर सकता है, आपकी सूरत को वो बदल सकता है। वो सूरत कैसी है? मेरे साथ कुर्सियों के खात्मे से अगर आप इसके पहले बाब की मेरे साथ 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले बाब की 14वीं आयत, वो सूरत कैसे चेंज हो सकती है? जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से
पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीजों से पहले है और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। हालेलुया। वो कौन है? कलीसिया का सर है। अगर वो हमें बचाने के लिए आया है तो आज भी हम उससे दूर हैं, आज भी उसके कफारे से पीछे हैं, आज भी सिर्फ यही सोच रहे हैं मेरे अमाल मुझे बचा लेंगे, आज ही सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरी कौम मुझे बचा लेगी, आज ही सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरे अच्छे गीत गाने मुझे बचा लेंगे, आज ही सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरा अच्छा ऊंची बोलना मुझे बचा लेगा, आज ही ये सोच रहे हैं कि मैं यूनानी हूँ तो मैं बच सकता हूँ, आज ही सोच रहे हैं मैं यहूदी हूँ तो बच सकता हूँ, क्योंकि उनको फख्र था अपने ऊपर। यूनानी इतना फख्र करते थे कि वो अपने ऊपर किसी कौम को मगलूब नहीं होने देते थे। वो कहते सबसे बड़ी कौम हम हैं। यहूदी कहते हैं सबसे बड़ी कौम हम हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से अब कोई ना यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई वैशी रहा, ना कोई सकूती रहा, ना कोई आजाद रहा, ना कोई गुलाम, सबका फख्र उसने खत्म कर दिया। उसने कहा एक ही है फख्र, जो है यीशु मसीह, जिसके वसीला से हम अबदी जिंदगी में दाखिल कर दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज भी वो आलमगीर तौर पर जो आलमगीर गुनाह पैदा हुआ था, उसको आलमगीर गुनाह को अपने खून का जो फिदिया है आलमगीर तौर पर देता है, ताकि जो कोई उसे कबूल करे वो हमेशा की जिंदगी पाए और उस बादशाह में दाखिल कर दिया जाए, और जो सबके लिए तैयार कर दी गई है। आज भी वो उस बादशाह का मालिक है और हमेशा तक है और हमेशा तक रहेगा। उसका ज़वाल नहीं है, उसको कोई गिरा नहीं सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसी के हाथ में है। हालेलुया। तो हमें किसी के पीछे दौड़ने की क्या जरूरत है? हमें अपने विज़ाने जो है देने की जरूरत क्या है? हमें अपने लिए कुर्बानियां गुजराने की जरूरत क्या है? हमें क्यों किसी के पास ढूंढने के लिए जाना चाहिए कि मुझे अब मुआफी के लिए क्या करना है? सब कुछ तो हमारे हाथ में है। वो क्या है? बाइबल मुकद्दस जो हमारे हाथ में है, जो हमें सच्ची तालीम देती है कि जो कोई इस पर अमल करेगा वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। खुदा उनका जिंदा कलाम हमेशा आपको अपनी बरकत अता फरमाए और ये बरकत हमेशा आपकी जिंदगियों में रहे, और ये जो बीज बोया गया है बहुत सा फल लाए और ये फल आपकी जिंदगियों में कायम रहे। खुदा आपको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।